स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होप यू विल बी फाइन यार। क्या हाल चाल है आप लोग? खैरियत से हैं? कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? आर यू लिसनिंग क्लास थर्ड ईयर? आर यू देयर ऑल ऑफ यू? जी, is my voice clear to all of you class? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्हाट अबाउट यू? What was the topic we are discussing in our class? Tell me the topic, class. I think is it academic writing, am I right? Yes, class. जी गुड आफ्टरनून। जी एकेडमिक राइटिंग की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट करना था। Meera Ashraf is very regular and very active participants of my lecture. जी क्लास एकेडमिक राइटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, अभी मीठी इंग्लिश की क्लास हम लोगों की वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। वो लोग लेट ज्वाइन किया है क्लासरूम या सिग्नल प्रॉब्लम भी होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए जो है वो मैं क्लियर करती हूँ प्लीज़। वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। क्यों राइटिंग जो है वो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्ली एजुकेशन टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। शुरू से लेके एंड तक ही मैंने आपको बताया था कि एकेडमिक राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिजनेस वर्ड हो जाए, स्कूल में हो जाए, स्टूडेंट्स हो जाए, स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आइडियाज इंफॉर्मेशन इन द क्लियर मैटर। It has added new insights about how writing and reading linked in early literacy. Why? What is academic writing? है क्या इनफैक्ट academic writing? साइमा इशारवी को आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? साइमा, बाकी सब स्टूडेंट्स को तो आवाज़ आ रही है।
जी। Summary connect your internet उसको आवाज ही नहीं आ रही तो मैं उसको कहूँ क्या academic writing is considering several sets of from normally an innovation targeted for a critical and informed audience based on closely investigated knowledge and intended to reinforce or challenge concept or argument. The academic writing students, professors, and researchers in every discipline use academic writing to convey ideas, make arguments, and engage in scholarly conversation. Academic writing is characterized by evidence-based, precise word choice, logical organization, and impersonal tone. Though sometimes thought of as long-winded or inaccessible, strong academic writing is quite the opposite. It informs analysis and persuades in a straightforward manner and enables the readers to engage critically in a scholarly dialogue. Academic writing refers to a style. क्या हुआ मैंने? Academic writing refers to a style of expression that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and the specific areas of expertise. जी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स इतना लेट क्यों एंटर हो रहे हैं भाई शोर आ रहा है शोर किस चीज़ का आ रहा है पीछे से बच्चों The academic writing refers to a style of expression that researchers use to define the intellectual boundaries of their disciplines and the specific areas of expertise. The purpose of academic writing है क्या the first step to writing academically is to clearly define the purpose of writing and the audience and readers. In general, most formal academic writing in universities set by and written for an academic tutor or assessor, and there should be clear criteria against which they will mark your work. जी मैंने पहले भी आप लोगों को यही बताया था स्टूडेंट्स के academic writing जो है उसमें आप लोगों को बहुत क्लियरली जो है academic रिसर्चर होते हैं हमारे पास academic assessors होते हैं ट्यूटर होते हैं academic ठीक है उनसे रिलेटेड ही जो है वो जी द फर्स्ट स्टेप ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो भी है वो देखते हैं कि आपका वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कअप है या नहीं है आप लोगों ने किस तरह से लिखा है किस तरह से जी नेक्स्ट इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ academic writing importance है क्या the purpose of academic writing as with the most other kinds of writing is to communicate for you as a student your writing is a markers only windows to your thoughts therefore it is important that you learn how best to write in a way which will convince the marker that you are understand what you are talking about so ठीक है तो वो सारा कुछ जो है वो आप लोगों को बताते हैं आपको जो है वो which kind of noise coming behind me class is it the noise of the human voices or is it noise of the other things would you like to tell me yes to tell me class
Types of academic writing, I describe it in very detail: descriptive, analytical, persuasive, and critical. Each of these types of writing has specific language features and purposes. जी मैम, क्या मैम? How to improve academic writing? किस तरह से academic writing को improve किया जा सकता है? These tips will help you enhance and polish your academic writing so that you can impress your peers, professors, and even publications right to the level of the attending audience. मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में बताया था कि if you are going to write an academic writing or thesis or anything else, but it should be according to the mentality of the audience. First, you have to choose the audience. ठीक है, first you have to watch and take a overlook to your audience कि आपकी ये आवाज़ कहाँ से आई? बेटा बीएसएफ सेकंड ईयर के हो, सेकंड रो के हो। पता नहीं कि आवाज़ कहाँ से आ गई है, क्या हो गया? मैं तो डरी गई, आवाज़ कहाँ से आई है? Anyhow, अभी ठीक है, मैं तो अपनी आवाज़ों के चक्कर में थी। You were saying that मैम नहीं आ रही आवाज़ सही से। अब मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक होगी होगी, आपको शोर नहीं आ रहा होगा आपको बच्चों? जी। हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग? किस तरह से एकेडमिक राइटिंग को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है? मैं ये बता रही थी आपको कि ऑडियंस पहले आपने जो है उनको अपनी सेटिस्फाई करना है, इस तरह से अपनी अपनी एकेडमिक राइटिंग करनी है, ठीक है? बिल्ड ऑन द पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप लोगों ने लर्न करना है उसको, और उधर से आपने सारा कुछ आगे लिखना शुरू करना है। हमेशा टू द पॉइंट ही रहना है, ठीक है? टेक अ स्टैंड, हमेशा आप लोगों ने जो है वो उस पर टेक अ स्टैंड कि उस पर कायम रहना है। जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो जो है वो आप लोगों के एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, रियलिटी बेस्ड होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है? और चैलेंजिंग मूड में आपने हर टाइम होना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आपने उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस, एविडेंस जो है आप लोगों ने वही देनी है। अपने सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो आप लोगों के एकेडमिक राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एकेडमिक राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए? रिटन लैंग्वेज इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एज स्पोकन लैंग्वेज। फॉर्मेलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है? एकेडमिक राइटिंग इज रिलेटिवली फॉर्मल। प्रिसिशन होना चाहिए। एकेडमिक राइटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन प्रिसाइजली। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया? जी,
Examples of academic writing. Academic writing comes in many forms. The following are some of the most common. कहते हैं बहुत सी जो है वो most common भी है. For example, literary analysis अगर हम लोग करें, literary analysis ऐसे examines where weights and makes and arguments about a literary work. As its same suggestions, a literary analysis essay goes beyond mere summarization. It requires more careful reading, close and careful reading of one or multiple texts, or and often focus on a specific characteristics, theme or motive. जी केयर रीडिंग के क्लोज केयरफुल रीडिंग जो है मैंने रिसेंटली आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोगों ने करनी है, मल्टी टैक्सेस को किस तरह से आप लोगों ने फोकस करना है, प्रैक्टिस को, थीम्स को, हर एक चीज़ को किस तरह से करना है. ठीक है. रिसर्च पेपर्स भी उस दिन आप लोगों को मैंने ये सारी डिटेल्स एक्सप्लेन की थी. एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि जो बच्चों ने उस दिन लेक्चर नहीं लिया या ऑनलाइन में आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आप लोग जो है वो अच्छी तरीके से देख लें. A research paper utilizes outside information to support a thesis or make an argument. Research papers are written in all disciplines and will be evaluative, analytical, or critical in nature. Common research sources include data, primary source, and secondary source. Writing a research paper involves synthesizing this external information with your own ideas. जी डाइजेशन से मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना शुरू करना है. एम आई राइट? What is the meaning of dissertation? 3 class. A dissertation or thesis is a document submitted at the conclusion of PhD program. The dissertation is a book-length summarization of the doctoral candidate's research. क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका? मैं लिख ही देती हूँ आप लोग को. Dissertation. Unable to concentrate just because of these noises. Which kind of noises are you hearing? Is this a human voice, or is this a noise of fan, or is this a noise of other things? Would you like to tell me? I asked many times it. Which kind of the noise coming behind from me? Yes. Yes, do tell me, class. किस किस्म का शोर आ रहा है मेरे पीछे से? You are complaining again and again. Human voices हैं या फिर किसी और तरह का शोर आ रहा है? मैं तो जहाँ बैठ के क्लास लेती हूँ वहीं पर ही ले रही हूँ क्लास. जी मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा बच्चों. Hello. Okay, dissertation a long essay on a particular subject. कहते हैं long essay होता है लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे, especially one written
फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए लिया जाता है या डिप्लोमा के लिए ये थीसिस लिखा जाता है या डिसर्टेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक ही जो है रिटन ऐसे किस तरह से किया जा सकता है। हमारे भी जब पेपर हुए थे मास्टर्स के तो हमारा एक पूरा सब्जेक्ट था जो कि एसेस पर था, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग जो होती है वो टोटल जो होती है वो उस पर ही बेस करती है ऐसे पर, ठीक है। लाइक वहाँ पर 100 पेपर जो होता था ना उसमें 3 एसेज आते थे। टोटल पेपर जो होता था वो 100 मार्क्स का होता था, उस पर 3 एसेज होते थे और चॉइस होती थी 3 ऐसे में कि यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑफ 100 मार्क्स, 100 यानी कि पूरा एक पेपर जो होता था ना वो 5 क्वेश्चंस पर कंसिस्ट करता था, ठीक है। लेकिन अगर 5 सवाल नहीं करने तो एक ऐसे ही फिर वो लिखना पड़ता था। पूरे का पूरा पेपर जो होता था वो एक ऐसे पे ही हमें लिखना पड़ता था, ठीक है। यानी 100 मार्क्स का एक ऐसे लिखना होता था, ठीक है। तो भी इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिसर्टेशन, ठीक है। और थीसिस ये भी डॉक्यूमेंट होता है, एकेडमिक राइटिंग ही बन जाती है। सेपरेटेड का कंक्लूजन ऑफ पीएचडी या पीएचडी के आखिर में दिया जाता है। पीएचडी प्रोग्राम जो कार्य होते हैं वो देते हैं। डिसर्टेशन इज अ बुक लेंथ समराइजेशन, बुक लेंथ की ही समराइजेशन होती है ऑफ द डॉक्टोरल कैंडिडेट रिसर्च। ये डॉक्टर ही बनने होते हैं जो भी, ठीक है। तो कैंडिडेट की जो है वो सर्च ही होती है। इज इट क्लियर? Characteristics of academic writing. Characteristics हैं क्या academic writing के? Most academic disciplines employ their own unique stylistic conventions होते हैं इनके different। However, all academic writing share certain characteristics। बहुत से जो है इनके characteristics अपने होते हैं। Clear and limited focus कहते हैं clear होना चाहिए, limited focus होना चाहिए। The focus of an academic paper कहते हैं clear focus होना चाहिए academic paper पर। Argument research questions पर is established early by the thesis statement। Every paragraph and sentence of the paper connect back to the primary focus, while the paper may include background or contextual information or content serves the purpose of supporting the thesis statement। जी पढ़िए, इसको देखें, समझिए क्या समझ आएगी आप लोगों को क्लास। जी ये स्लाइड जो है मैंने दी है आप लोगों को, पढ़िए इसको, मुझे समझ आती है पूछे मेरे से। जी
जी, स्लाइड रीड करने के लिए देखिए आपको कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स एकेडमिक राइटिंग के होते हैं। मोस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन्स employ their own unique stylistic conventions, however, और academic writing shares certain characteristics. अब academic writing के भी different जो हैं वो जिस तरह से methods आप कह सकते हैं होते हैं, different unique style होते हैं academic writing के, जिस तरह से आप अपनी PPTs में आते हैं, PPTs के भी जो है वो different style होते हैं, different जो है criteria होता है, ठीक है। उस तरह से आपको अगर बनानी होती है बिल्कुल इस तरह से ही आपकी academic writing के जो है वो certain characteristics होती हैं, different style होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्लियर एंड लिमिटेड फोकस जो है वो किस तरह से कैसा था फोकस होता है एकेडमिक राइटिंग पेपर कहते हैं एकेडमिक पेपर जो है द आर्गुमेंट और रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं इज एस्टैब्लिश्ड अर्ली बाय द थीसिस स्टेटमेंट इसमें दी जाती है एवरी पैराग्राफ एंड सेंटेंस ऑफ द पेपर कनेक्ट्स बैक टू दैट प्राइमरी फोकस पे ये जो है उस पर किया जाता है इसके बेसिकली सेंटेंस क्या है पेपर कनेक्ट्स जो कनेक्शंस है इसका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर का क्या स्ट्रक्चर है इसका वाइल द पेपर में इंक्लूड बैकग्राउंड और कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन का तो पेपर जो है उस पर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इसमें कंसिडर होता है और कंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन जो इसमें ऐड की जाती है और नेक्स्ट सर्व्स द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग द थीसिस स्टेटमेंट क्या है वो सारा जो है इसका पर्पस बेसिकली क्या पर्पस होता है थीसिस स्टेटमेंट इसके जो है पर्पस क्या है इस चीज़ का और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का आप लोगों ने एकेडमिक राइटिंग का है और एकेडमिक राइटिंग का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है ठीक है इसको आप पढ़ें जो नहीं समझ आती वो पूछे मुझसे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास इसको पढ़ना शुरू करें जी
जी, अगर हम नेक्स्ट है टोटल लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो प्रीवियस वन जो है हम लोगों ने देखा है कि क्लियर एंड लिमिटेड फोकस किस पर होना चाहिए हम लोगों का। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर। ऑल एकेडमिक राइटिंग फॉलोज द लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। कहते हैं जितनी भी एकेडमिक राइटिंग का है वो लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ही होना चाहिए। एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, body paragraph and a conclusion. The introduction provides background information, lays out the scope and direction of the essay, and states the thesis. The body paragraphs go the thesis statement, with each body paragraph elaborating on one spotty point. The conclusion refers back to the thesis, summarizes main points, and highlights the implications of the paper's findings. Each sentence and paragraph logically connects to the next in order to present a clear argument. Okay. ठीक है जी। अब लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है आप लोग का, इफ यू आर गोइंग टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग थीसिस व्हाटएवर, ठीक है, तो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। ये स्लाइड आप लोगों ने गौर से पढ़नी है और ये मुझे बताना है आप लोगों ने। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे समझाएंगे किस तरह से करनी है ये वाली स्लाइड आप लोगों ने। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताना, आप लोगों ने मुझे बताना है। इसको पढ़ें, समझें और मुझे बताएं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर है क्या, इसका किस तरह से किया जाता है। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग, when you are going to write an academic writing, then what will be the structure? जी, जी, लॉजिकल स्ट्रक्चर और एकेडमिक राइटिंग फॉलोज अ लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर होता है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इसकी। एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, एक कंक्लूजन देते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या कहते हैं, ठीक है, अब जो भी एकेडमिक राइटिंग लिखने जा रही है उसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ होंगे और उसके बाद कंक्लूजन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लेज आउट द स्कोप एंड डायरेक्ट ऑफ द एसेज एंड स्टेट्स थीसिस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन जो होगा वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता होगा, वो बैकग्राउंड होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, लेज आउट द स्कोप होगा उसका, डायरेक्ट ऐसे होते हैं, एंड द स्टेट द थीसिस होगा। द बॉडी पैराग्राफ स्कोर्स द थीसिस स्टेटमेंट होगी, विच इज बॉडी पैराग्राफ एलैबोरेटिंग ऑन वन स्पॉटिंग पॉइंट होगा। द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन इस पे किस पे बेस करेगा, रेफर्स बैक टू द थीसिस,
अच्छा आरिफ को मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही बच्चे? कैन यू हियर मी क्लास? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मीरा। जी नबीला रियाज ने क्या एक्सप्लेन किया है? नबीला रियाज ओके मैम। आवाज़ क्लियर है मेरी? पहले ये बताएं आपको मुझे। जी क्लास में नहीं है। आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को बच्चों? जी कैन यू हियर मी? हेलो कैन यू हियर मी क्लास? हेलो जी मीरा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो मीरा मेरी आवाज़ आ रही है आपको मीरा? मेरी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वॉइस क्लियर मीरा? हेलो हाँ आ तो रही है ना आवाज़? हेलो मीरा गुड इवनिंग कैन यू हियर मी मीरा? हेलो आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को स्टूडेंट्स? जी मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर? ठीक है आवाज़ क्लियर नहीं है लेकिन आवाज़ आ रही है ठीक है प्रेस्टीज को भी आवाज़ आ रही है ओके ओके फाइन। ओके फाइन ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था आप लोगों को। जी ओके अच्छा जी उसके जब बॉडी पैराग्राफ की सपोर्ट द थीसिस पे स्टेटमेंट कहते हैं सपोर्ट करेंगे थीसिस स्टेटमेंट पे ईच बॉडी पैराग्राफ हैव ऑन वन स्पोर्टिंग पॉइंट पे ही हम लोग जितना भी एक्सप्लेन करेंगे उसको वन स्पोर्टिंग पॉइंट ही होगा हमारे पास ठीक है। उसके बाद जो है द कंक्लूजन रेफर्स बैक टू द थीसिस कहते हैं कंक्लूजन जब काम करेंगे तो फिर थीसिस को ही हम उसमें डिस्कस करेंगे समराइज करेंगे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे implication देंगे उसको पेपर फाइंडिंग्स देंगे each sentence and paragraph logically connects to the next in order to present a clear document a clear argument दिया जाएगा ठीक है। बात वही होती है कि जो भी हम कोई चीज़ लिखते हैं उसमें क्या होता है हमारे पास सबसे पहले क्या आता है इंट्रोडक्शन आता है ठीक है इंट्रोडक्शन आते हैं उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है
लॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है और लॉजिकल स्ट्रक्चर में जो है मेन हम लोगों ने बैकग्राउंड उसका दे देना है, ठीक है। जितना भी उसके बारे में जो है बैकग्राउंड उसका होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री होगी वो उसकी दे देंगे। और बॉडी पैराग्राफ में जो है हमने सपोर्टिंग पॉइंट्स देने हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इलेबरेट करने हैं वो वहाँ पर सारे, ठीक है। कंक्लूजन में हमने थीसिस का ही समराइज करके उसको लिख देना है, उसके मेन पॉइंट्स लिख देंगे हैं, हाईलाइट्स एप्लीकेशंस ऑफ द पेपर फाइंडिंग जितनी भी हैं वो सारी उसमें लिख देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। इज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट एंड सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। जी, नबीला ने यहाँ क्या किया है मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जो एक्सप्लेन किया है मिस नबीला रियाज जी। मैम इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि एकेडमिक राइटिंग के स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट्स हैं। गुड फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जो हम राइट करेंगे, उसे पॉइंट आउट करना है। एंड जो बॉडी पैराग्राफ है जो हमने लिखा है पॉइंट्स को सपोर्ट करेगा। वेरी गुड। और बेसिकली पॉइंट्स को जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो करते हैं, लेकिन उसमें जो है वो कंक्लूजन में सारी राइटिंग की समरी हो जाएगी, ठीक है जी। कंक्लूजन में सारी समरी राइटिंग हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कोर्स, ठीक है जी। इसमें क्या है, क्लियर एंड लिमिटेड फोकस जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर भी आप लोगों को होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ओके जी। एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट होनी चाहिए, कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिर आई वांट टू टेक टू योर अटेंडेंस, आपके अटेंडेंस लेते हैं अभी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हु इज़ योर सीआर ऑफ द क्लास एंड वी आर कायनात, इज कायनात प्रेजेंट हियर? जी, कायनात आपका मैसेज कन्वे करते हैं कि अभी तक मैं जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं वो मुझे टेक्स्ट करें ज़रा, ठीक है, ताकि मैं उसको जो है शालामार लर्निंग के पोर्टल पर आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो है वो भेज सकूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने ओके जी। ये वहाँ से आगे चली गई, वहाँ से आगे चली गई, क्या लगाई रखते हैं आप लोग हैं? हाँ, आगे वहाँ से चली गई, इसी में सारे लेक्चर बता देते हैं आप लोग तो। हालांकि यहाँ से बिल्कुल ठीक होती हैं, आप लोग के कनेक्शन प्रॉब्लम होते हैं, इस वजह से बच्चों जो आप लोग कहते हैं आवाज़ आ गई, वहाँ से नहीं, आवाज़ कायनात आज थिंक आज नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों क्लासेस लेते, लेकिन क्लासेस नहीं लेते। हाँ, मम्मी ने लिखा है क्या, ये ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लेक्चर। मैम जी शाबाश मम्मी। ऐसे ही जब आप कॉलेज भी आएंगी इसी तरह रेगुलरली आपने क्लासेस अटेंड करनी है। अच्छा, कि बंक नहीं करनी क्लासेस।
जी, बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं आप लोग के जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनके लिए इनाम होना चाहिए, इनाम ही इनाम है बच्चों आपके लिए तो। इनाम है आप लोगों के लिए, इनाम तो आपको मिल रहा है और मिलेगा भी, भला कैसे? जी, बिल्कुल, जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर हैं, मैं ये भी कह रही हूँ कि जब कॉलेज ओपन हो जाएँगे ना, तब भी वो बच्चे मुझे अपनी क्लास में रेगुलर ही नज़र आने चाहिए। ब्रेक के बाद होता है, तो उसके ब्रेक के बाद मुझे बच्चे वो कैफेटेरिया में या इधर-उधर ही भागते हुए नज़र नहीं आने चाहिए। अल्लाह माफ़ कर दो। हाँ, बिल्कुल, यही फ़ायदा है आप लोगों को, यही इनाम मिल रहा है कि आप लोगों की लर्निंग हो रही है बच्चों। आप लोग सेकंड ईयर में होते हुए भी आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं। जो बच्चे ले रही हैं ना, उनकी लर्निंग हो रही है। ये दोबारा आप लोग अगर ये समझ रहे हैं ये बच्चे इस भूल में हैं कि हम लोग दोबारा जाएँगे तो ये पढ़ाना शुरू कर देंगे, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वही इनाम यही मिल रहा है आप लोगों को कि आप लोग की लर्निंग हो रही है और क्या इनाम मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? यही इनाम होता है आप लोगों के लिए। अच्छा वाला इनाम, इससे अच्छा वाला कोई इनाम नहीं होता कि आप लोगों की जो है वो लर्निंग हो रही है, आप लोगों को नई जो है लेसन सुनने को मिल रही हैं, नई चीज़ें आपकी जो है वो हाँ, बाकी कॉलेज में बाकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, दैट्स ट्रू कि बाकी कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रही हैं। उसमें देखना अब आप लोगों ने किस तरह से वो बेचारे करते होंगे जहाँ पे क्लासेस ही नहीं हो रही हैं। जी, class, do you want to ask any question regarding these slides? So tell me, I'm here. जी हाँ, शाबाश है ना आप लोगों के लिए, शाबाश। ठीक है, शाबाश दे देते हैं आपको, ओके। No, ma'am, no question. Okay, thank you. You also thanks to all of you who attended this lecture. शाबाश। ये कह सकते हैं हम लोग, आपको क्या कह सकते हैं? चलिए, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। कॉलेजेस का अभी कुछ नहीं पता कि कब ओपन होंगे, सितंबर में आई थिंक, तो अभी 15 सितंबर अभी तो डेट आई है कॉलेज ओपन होने की, लेकिन अभी वो कहे थे कि बिगनिंग ऑफ द सितंबर जो है वो दोबारा से देखा जाएगा कि कोरोना को कितनी हद तक ओवरकम किया गया है, उसके बाद आप लोग की इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।